हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। पिछले वीडियो लेक्चर में बेटा हमने सेट्स स्टार्ट किया था, उसकी एक एक्सरसाइज की थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सबसेट्स एंड प्रॉपर सबसेट्स। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। ए एंड बी आर टू सेट्स, and if every element of A belongs to is an element of B, then A is said to be a subset of B. Let A equals to set having elements 2, 3, 7, 9, and B is the set having elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Now, each element of set A is an element of set B. Then we say that A is a subset of B. ये सिंबल जो होता है बेटा, ये सबसेट के लिए यूज किया जाता है। सबसेट, if each element of A is an element of B, then A is a subset of set B. Phi is subset of every set. Phi means null set, void set, empty set. Phi is subset of every set. क्योंकि phi में कोई एलिमेंट होता ही नहीं बेटा, इसलिए phi सभी का सबसेट होता है। एंड ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. A is a subset of A because A, each element of A is an element of A also. Therefore, A is a subset of A. B is a subset of B because each element of set B is an element of set B also. Therefore, B is a subset of B. A is a subset of A. Phi is subset of all sets. Now we define proper subset. Proper subset. If A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B. A is a proper subset of B and we denote it as A is a proper subset of B. बेटा सबसेट के लिए आप ये सिंबल लगा के नीचे इक्वल टू साइन कर देते हैं, जबकि प्रॉपर सबसेट में आपने केवल ये सिंबल यूज करना है। If A is a subset of B and A is not equal to B, then we say that A is a proper subset of B. Or in other words, we can say if every element of A is an element of B, but there is at least one element of B which does not belongs to A, then A is a subset of B. इसके बाद आपका आता है, now next is subset of set of real numbers. Subset of set of real numbers. Now we know that set of natural number is a subset of set of whole number, and set of whole number is a subset of set of integers, and set of integers is a subset of a set of rational numbers. It means set of natural number is subset of whole numbers because all natural numbers are included in set of whole numbers, and set of whole number, set of natural number both are subset of set of integers, and set of natural number, set of whole number, set of integers all are subset of set of rational numbers, and set of irrational number is a subset of a set of real numbers, and set of rational numbers is also set of subset of real numbers. Set of rational number and set of irrational number and set of rational number both are subset of set of real number.
These are subsets of set of real numbers. Now, intervals as the subset of a set of real numbers. सपोज कीजिए बेटा आपके पास ये रियल लाइन है और इस रियल लाइन पे आप कोई भी दो नंबर सिलेक्ट करते हैं, एनी टू रियल नंबर, लेट ए एंड बी। तो जैसा कि आपको पता है कि लेफ्ट में कोई भी वैल्यू होती है वो राइट में लिखी गई वैल्यू से छोटी होती है और राइट में लिखी गई वैल्यू से बड़ी होती है। इट मीन्स ए इज लेस देन बी। अब आपको पता है ए और बी के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। यदि आप ए को इंक्लूड करते हैं तो ये सर्कल करके आप डार्क करेंगे, बी को भी इंक्लूड कर लेते हैं और ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर्स को इंक्लूड कर लिया जाए। ऑल रियल नंबर्स lying between a and b, including a and including b, then it is called the closed interval AB. Closed interval AB. Closed interval AB. Closed interval AB. It is said to be closed interval AB. Closed interval AB means all real numbers lying between A and B, including A and including B. इसी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is greater than equal to A, less than equal to B, and x belongs to set of real number. x की उन सभी रियल वैल्यूज का सेट जो a और b के बीच लाई करती हैं, जिसमें a और b दोनों इंक्लूड हैं, वो आपका इंटरवल कहलाएगा फ्रॉम a टू b। इसी तरह से यदि आप इन दोनों को एक्सक्लूड कर दें, एक्सक्लूड करते हैं तो ये सर्कल आपने डार्क नहीं करना है। यदि आप a और b के बीच के सभी रियल नंबर्स लेते हैं बट जिसमें a और b इंक्लूड नहीं है तो इसे ओपन इंटरवल ए बी कहा जाता है। ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी मीन्स ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी, एक्सक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग बी। और इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में यदि कहा जाए तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए, लेस देन बी, एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिए इसमें ए बी इंक्लूड नहीं है, जबकि इसमें इक्वल टू साइन होने के कारण ए और बी इंक्लूड है। इसके बाद एक होता है बेटा सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल। सेमी मीन्स हाफ ओपन या हाफ क्लोज्ड। जैसे कि अगर आप ए और बी के बीच के सभी रियल नंबर्स में ए को इंक्लूड करते हैं बट बी इंक्लूड नहीं करते हैं तो ये आपका सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल कहलाएगा और इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब आप देखिए वन साइड क्लोज्ड एंड वन साइड ओपन हो गया, इसे कहा जाता है सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बट लेस देन बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रियल नंबर। एक्स की उन सभी रियल वैल्यूज का सेट जिनकी वैल्यू ए और बी के बीच लाई करती है, जिसमें ए इंक्लूड है बट बी इंक्लूड नहीं है, ये आपका सेमी क्लोज्ड इंटरवल कहा जाता है। इसी तरह से आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, इसे आप सेमी ओपन कह सकते हैं, सेमी ओपन इंटरवल, वन साइड क्लोज वन साइड ओपन। अब इसमें ए इंक्लूड नहीं है बट बी इंक्लूड है।
सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखा जाएगा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x is greater than a but less than equal to b and x belongs to set of a real number. तो आप इस तरह के सेट को इंटरवल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इंटरवल फॉर्म से आप उसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ये दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं। नाउ नेक्स्ट इज पावर सेट ऑफ ए सेट. Power set means the collection of all subsets of a given set is called power set of a given set. Suppose आपके पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट आपके पास 1, 2 और 3 है। अब इस गिवन सेट के जितने भी सबसेट्स पॉसिबल होंगे उन सभी की जो कलेक्शन होगी, उन सभी को मिला के जो सेट बनेगा वो इस गिवन सेट का पावर सेट कहलाएगा। अब एक चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी सेट है तो उसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने हो सकते हैं। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इस सेट में 3 एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए आप 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दें। 2 raised to the power 3 equals to 8, यानी कि इस सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो 8 के इक्वल होंगे। इसी तरह से सिमिलरली अगर किसी सेट में मान लीजिए कि n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power n के इक्वल होंगे। आप जितने सेट में एलिमेंट हैं 2 की पावर करें वो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स के इक्वल होंगे। अब ये 8 सबसेट कौन से होंगे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे और उन सबसेट्स की जो कलेक्शन होगी दैट इज पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए कहलाएगी। पावर सेट को हम PA से डिनोट करेंगे। यदि ये सेट A से डिनोट किया तो इसके पावर सेट को हम पावर सेट ऑफ A से डिनोट करेंगे। अब इसके सबसेट्स कौन से होंगे? आपने जैसे कि पढ़ा है पावर सेट ऑफ A इक्वल्स टू कि फाई इज नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप जब किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं तो उसका सबसे पहला सबसेट फाई होगा। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट्स के सेट बनाएं तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, सिंगल एलिमेंट के सेट बनाएंगे तो सेट हैविंग एलिमेंट 1, सेट हैविंग एलिमेंट 2, सेट हैविंग एलिमेंट 3। अब ये सभी गिवन सेट ए के सबसेट हैं क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स ए से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप दो एलिमेंट लेके सेट्स बनाएं। 2 एलिमेंट लेके यदि आप सेट बनाते हैं तो पहले आपने 1 और 2 ले लिया, 1 के साथ 2 हो गया, फिर 1 के साथ 3 ले लें, 1 2 हो गया, 1 के साथ 3 हो गया। अब 1 को छोड़ दें और 2 और 3 ले लें, 2 के साथ 3 हो गया। तो ये 2 डबल एलिमेंट वाले सेट्स हो गए। अब आप क्योंकि प्रत्येक सेट खुद का भी सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देयरफॉर अब इसके सभी एलिमेंट्स लेंगे तो ये भी इसी का सबसेट होगा, सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2 एंड 3। अब आप काउंट करें तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो गई। और यही मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होते हैं। अब इन सभी की जो कलेक्शन है यदि इसे सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो ये गिवन सेट ए का पावर सेट कहलाएगा। तो इट मीन्स पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। अब आप देखें कि पावर सेट भी एक सेट ही होता है लेकिन उसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी सेट की फॉर्म में होते हैं और वो गिवन सेट के सबसेट के रूप में लिखे जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कंपेरेबल सेट्स एंड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यदि आप एक साथ एक बार में एक से ज्यादा सेट्स के बारे में कंसीडर कर रहे हैं तो जितने भी सेट्स हैं वो जिस लार्जर सेट के सबसेट होते हैं वो लार्जर सेट आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है। जैसे आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट आपने 1, 3, 5, 7 और 9 लिए। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट आपने 2, 4, 6, 8 ले लिए। एक सेट आपके पास मान लीजिए सी है जिसके एलिमेंट आपने 2, 3, 5 एंड 7 लिए।
एक सेट आपके पास D है जिसके एलिमेंट आपने 7, 8, 9 एंड 10 ले लिए, और एक सेट आपने लिया जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जब आप इन सारे सेट्स के बारे में एक साथ कंसीडर कर रहे हैं तो ये सभी सेट इस लार्जर सेट के सबसेट हैं। इनमें से प्रत्येक सेट इस सेट का एक सबसेट है। तो ये जो लार्जर सेट है ये इन सभी सेटों का यूनिवर्सल सेट कहलाता है और इसे कैपिटल लेटर U से डिनोट किया जाता है। तो U is the universal set of given all sets. Comparable sets. Two sets A and B are comparable if A is a subset of B or B is a subset of A. यदि A B का सबसेट है या B A का सबसेट है तो ये दो सेट कंपेरेबल सेट कहलाते हैं, और यदि इनमें से कोई भी सेट एक दूसरे का सबसेट ना हो तो ये कंपेरेबल नहीं होंगे। So let's start the exercise. The first question is examine whether the following statements are true or false. फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें ये दिया गया है कि ये सेट इसका सबसेट नहीं है। अब सेट की सबसेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहला सेट दूसरे का सबसेट कब कहलाएगा? जब ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। तो आप ऑब्जर्व कीजिए, इसमें 1 है और ये 1 इससे भी बिलोंग कर रहा है, इसमें 2 है, ये 2 भी इससे बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये सेट इसका सबसेट है। जबकि सिंबल आपको दिया गया है नॉट ए सबसेट का, तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। इसी तरह से आप अदर पार्ट्स कर सकते हैं। एक पार्ट इसी क्वेश्चन का है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। ये दोनों ही सेट आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। तो पहले आप इनको टेबुलर फॉर्म में लिखें, उसके बाद आप कंपेयर करके देखें कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। यदि आप इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो आप x की वो सभी वैल्यूज लिखेंगे जो इवन नेचुरल नंबर है और जो लेस देन 8 है। तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8 1, 2, 3, 4, 5। इवन नेचुरल नंबर हो गए आपके पास 2, 4, 6। 2, 4, 6 आर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8। ये 3 आपके इवन नेचुरल नंबर्स है विच आर लेस देन 8। सबसेट ऑफ x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 64। आप 1 से 64 में डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से आप 64 में डिवाइड नहीं कर सकते, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, 8 से कर सकते हैं। 8 के बाद आप 16 से 8, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 से कर सकते हैं। उसके बाद आप 32 से कर सकते हैं एंड नेक्स्ट 64 से कर सकते हैं। ये वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं जिनसे आप 64 में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप ऑब्जर्व करें कि इस सेट में 2 है जो इससे भी बिलोंग करता है, इस सेट में 4 है जो इससे भी बिलोंग करता है, बट इस सेट में 6 है जो इस सेट से बिलोंग नहीं करता है। तो 6 बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेकंड सेट। इट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं है, जबकि जो सिंबल दिया गया है उसमें बताया गया कि ये इसका सबसेट है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ तीनों क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं तीनों को एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। जिसमें सेकंड क्वेश्चन है राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इफ इट कंटेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उसके नंबर ऑफ सबसेट 2 रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल होता है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर n। इसमें यदि 3 एलिमेंट्स हैं तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे
नंबर ऑफ सबसेट्स वो 2⁻³ के इक्वल होंगे। जितने एलिमेंट है 2⁻³ कर दें वो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स की संख्या आ जाएगी। इसी तरह से हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी गिवन थे, यहाँ से आपने काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बताएंगे, कितने सबसेट्स आप उसके फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब जैसे इसमें थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है फर्स्ट सेट 5 यानी नल सेट। अब आप जैसा कि जानते हैं नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि हम काउंट करें तो 0 होंगे, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो ये 2⁻0 और किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ सबसेट्स एक ही होगा। ये जो सेट है ये खुद ही सबसेट होगा स्वयं का, इसके अलावा इसका और कोई सबसेट नहीं होगा, इसलिए इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 1 होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इसमें आपको इनफाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट 1 से लेकर n तक हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स भी सेम होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2⁻n के इक्वल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 a b c एंड d। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ये आपके 2⁻4 यानी 16 होंगे। अब आपने वो सभी सबसेट्स इसके लिखने हैं, तो आपको सबसेट लिखते समय सबसे पहले बताया था कि आपने 5 लिखना है, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट बनाएं, इसमें 4 एलिमेंट हैं तो 4 सिंगल एलिमेंट वाले सेट हो जाएंगे, सेट हैविंग एलिमेंट ए बी सी एंड डी। इसके बाद आप 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाएं, तो ए के साथ आप बी लेंगे, देन ए के साथ आप सी लेंगे, देन ए के साथ आप डी लेंगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी का कॉम्बिनेशन हो गया। अब आप ए को छोड़ दें, फिर बी के साथ सी लेंगे, बी के साथ आप डी लेंगे, बी के साथ सी, बी के साथ डी आ चुके हैं। अब आप बी को भी छोड़ दें, फिर सी के साथ डी लेंगे, तो सी डी, ये 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट हो गए। अब आप 3 एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाएंगे। 3 एलिमेंट वाले सबसेटों में आप एक बार डी को छोड़ दे, 3 एलिमेंट बच जाएंगे, एक बार सी को छोड़ दे, 3 एलिमेंट बच जाएंगे, एक बार बी को छोड़ दे, 3 एलिमेंट बच जाएंगे, एक बार आप ए को छोड़ दे तो 3 एलिमेंट बच जाएंगे। तो सबसे पहले हमने डी को छोड़ दिया, तो ए बी सी। नेक्स्ट आप सी को छोड़ दें, ए सी डी। उससे नेक्स्ट आप बी को छोड़ दें, तो ए सी डी। उससे नेक्स्ट में आप ए को छोड़ दें तो ये बन जाएगा बी सी डी। प्रत्येक 3 एलिमेंट्स वाले सेट में आपने एक एलिमेंट को छोड़ दिया, एक बार डी को, एक बार सी को, एक बार बी को, एक बार ए को। और क्योंकि प्रत्येक सेट खुद का सबसेट होता है तो एक इसका सबसेट हो जाएगा ये खुद ही ए बी सी डी। इस तरह से इसके नंबर ऑफ सबसेट 16 होने चाहिए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ A इक्वल्स टू set having elements pair AB and C, find the power set of A। इसमें आपने ऑब्जर्व करना बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 2 हैं न कि 3 हैं। ये कंप्लीट पेयर एक एलिमेंट है, ये इसका सेकंड एलिमेंट है। और जैसे कि आपको बताया था पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। यदि इसमें 2 एलिमेंट हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻² यानी कि 4 होंगे, और उन 4 सबसेटों की जो कलेक्शन होगी वो इसका पावर सेट होगा। तो यदि आप इसका पावर सेट लिखते हैं PA, तो सबसे पहले आप इसमें 5 लिखेंगे, बिकॉज 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। उसके बाद आप सिंगल एलिमेंट्स वाले सबसेट बनाएंगे। सिंगल एलिमेंट में आप सबसे पहले ये पेयर AB लेंगे,
उसके बाद आप सी लेंगे, और प्रत्येक सेट खुद का भी सबसेट होता है, तो एक सेट आपने ये इटसेल्फ लिखना है, यानी कि पेयर ए बी एंड सी, एंड दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स एंड जस्ट इसका अपोजिट राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप पहले 7वां क्वेश्चन देखें, इसमें आपको जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है ये, और इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 5। यदि आप इसको इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो सारे रियल नंबर्स लेने हैं जो -5 + 5 के बीच है, लेकिन इसमें -5 और 5 इंक्लूड नहीं है, तो आप इसे ओपन इंटरवल -5 to 5 के रूप में लिखेंगे। ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो ऑल रियल नंबर्स इंक्लूड है, बट इसमें -5 + 5 इंक्लूड नहीं है। सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन 4 and 11 एक्सक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग 11। इसमें 4 एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है, जबकि 11 इंक्लूड है, तो इसे आप सेमी ओपन इंटरवल के रूप में लिखेंगे 4 to 11, वन साइड ओपन वन साइड क्लोज्ड। अब ये क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पे आपने सेट बिल्डर फॉर्म से इसको इंटरवल फॉर्म में लिखा है, अब आपको इंटरवल फॉर्म में दे रखे हैं और इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज इन सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन -5 and 0। तो इसे आप लिखेंगे सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -5 बट लेस देन 0। All real numbers lying between 3 and 6 including 3 but excluding 6. Set of all real numbers x. Set of all values of x such that x belongs to set of real number and x is greater than equal to 3 but less than 6. ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Next question is let A is the set having elements 1, 2, 3, 4, B is the set having elements 1, 2, 3 and C is the set having element 2 and 4. Find all sets X. आपने वो सभी सेट्स फाइंड आउट करने हैं और उनको X से डिनोट करना है, satisfying the each pair of following conditions, जो आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। स्टूडेंट्स, इसमें मैंने पार्ट 1 और 2 लिए हैं। पार्ट 1 और 2 में आप जैसे कि देख रहे हैं सेट ए का कोई रोल नहीं है, तो आप इसको सेट ए को ना ले तो भी आप इसे प्रूव कर सकते हैं। पार्ट 3 के लिए आपको ए बी सी तीनों की आवश्यकता होगी, तो मैं केवल पार्ट बी और सेट बी और सी की हेल्प से ये दोनों पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। आप इसी तरह से इसके सबसेट फाइंड आउट करके पार्ट 3 सोल्व कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने इन सभी सेटों के सबसेट फाइंड आउट करने हैं, इट मींस पावर सेट फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले आप बी के पावर सेट निकालेंगे, पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी, जैसा कि आप देख रहे हैं बी में 3 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻³ 8 होंगे, और वो होंगे आपके 5 सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3। इसके बाद आप दो एलिमेंट लेंगे 1, 2, 1, 3 एंड 2, 3 एंड सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2, 3। ये पावर सेट ऑफ बी हो गया, इट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट बी आ गया। इसी तरह से आप पावर सेट ऑफ सी निकालेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट सी। इसमें आप देख रहे हैं 2 एलिमेंट हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻² यानी कि 4 होंगे, और ये 5 सेट हैविंग एलिमेंट 2, सेट हैविंग एलिमेंट 4 एंड सेट हैविंग एलिमेंट 2, 4। अब आप फर्स्ट पार्ट की कंडीशन देखें। फर्स्ट पार्ट में जैसे कि आपको दिया गया है x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x इज नॉट ए सबसेट ऑफ c। आप देख रहे हैं ये जितने भी सेट हैं ये b के सबसेट हैं, और यहाँ पे जितने भी सेट्स हैं ये c के सबसेट हैं। अब आपने वो सारे सेट्स फाइंड आउट करने हैं जो b के सबसेट हैं बट c के सबसेट नहीं हैं।
तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कौन से सेट ऐसे हैं जो बी के सबसेट हैं बट सी के सबसेट नहीं है। आप देख रहे हैं 5b का सबसेट है, 5c का भी सबसेट है। ये सेट बी का सबसेट है बट सी का सबसेट नहीं है, तो x की एक वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। उसके बाद ये दोनों का कॉमन सबसेट है। उसके बाद 3b का सबसेट है बट सी का सबसेट नहीं है। उसके बाद आप 1 2 लें, ये भी बी का सबसेट है। 1 3 लें, ये भी बी का सबसेट है। 2 3 लें, ये भी बी का सबसेट है। इसके बाद 1 2 3 लेते हैं तो ये भी बी का सबसेट है। इट मीन्स अगर आप ये दो सेट छोड़ दें तो ये बी के सबसेट और सी के सबसेट दोनों के सबसेट हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी सबसेट्स हैं ये केवल बी के सबसेट हैं बट सी के सबसेट नहीं है। और आपने वो सभी सबसेट फाइंड आउट करने हैं विच आर सबसेट ऑफ बी बट विच आर नॉट ए सबसेट ऑफ सी। देयरफॉर एक्स की जो वैल्यूज होगी या कलेक्शन होगी सबसेट्स की वो होंगी आपकी, सबसे पहले आप लेंगे इसमें 1, next is 3, then 1 2, 1 3, 2 3 and 1 2 3। आप देख रहे हैं ये जितने भी x की वैल्यूज हैं, जितने भी सबसेट्स हैं, ये सभी b के सबसेट हैं बट इनमें से कोई भी सेट c का सबसेट नहीं है। और सेकंड पार्ट में आपको जो कंडीशन दी गई है उसमें ये कहा गया है कि x b का सबसेट हो बट x की वैल्यू b के इक्वल ना हो और x c का सबसेट भी ना हो। तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा कि ये जितने भी सबसेट्स हैं ये b के सबसेट हैं और ये c के सबसेट नहीं है। इसमें एक कंडीशन बढ़ा दी गई है कि x की वैल्यू b के इक्वल ना हो। तो यदि आप इसे एक्सक्लूड कर दें क्योंकि ये सेट b के इक्वल है तो बाकी जो सेट्स बच जाएंगे वो सारे b के सबसेट होंगे। इनमें से कोई भी सेट b के इक्वल भी नहीं होगा और ये c के सबसेट भी नहीं है। तो आपकी x की जो वैल्यूज होगी वो होगी सेट हैविंग एलिमेंट 1 3 1 2 1 3 2 3। ये आपका सेकंड पार्ट। ये सभी वो सेट हैं जो बी के सबसेट हैं जिनमें कोई भी बी के इक्वल नहीं है और इनमें से कोई भी सेट सी का सबसेट नहीं है। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Let A, B, C be three sets. If A is a subset of B, B belongs to C. And is it true that A belongs to C? If not, give an example. इसमें आपको ये बताया गया है बेटा कि A और B दो सेट हैं और A B का सबसेट है। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B। और इसके बाद दिया गया B बिलोंग्स टू C। इट मीन्स ये जो सेट है ये कंप्लीट सेट C सेट का एक एलिमेंट है, न कि इसका एक सबसेट है। तो आपसे ये पूछा गया है क्या सेट A जो है ये सेट B का एक एलिमेंट होगा, क्या सेट A C से बिलोंग करेगा, और यदि नहीं तो इसके लिए आपने एक एग्जांपल देना है। तो इसके लिए हम एक सेट लेते हैं। लेट A इज द सेट हैविंग एलिमेंट 1। सिंगल एलिमेंट आपने 1 ले लिया, या आप इसमें दो एलिमेंट भी कर सकते हैं। 1 2 ले लिया आपने। A is a subset of B and B के एलिमेंट्स आपने ले लिए 1 2 3। तो आपकी पहली कंडीशन थी A is a subset of B, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि A B का एक सबसेट है। उसके बाद दिया गया है B belongs to C। B belongs to C, सेट B C का एक एलिमेंट है। तो इसके लिए आपने सेट C ना है और इसमें आप पहला एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 8 9। आपने सेट सी को इस तरह से लिखना है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट ऑलरेडी एक सेट हो, यानी कि सब सेटों की कलेक्शन के रूप में लिखना है। अब आपकी पहली कंडीशन थी कि ए बी का सबसेट हो, तो आप देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी का एक सबसेट है। एंड बी बिलोंग्स टू सी, तो ये पूरे का पूरा सेट सी का एक एलिमेंट है, तो बी सी से बिलोंग भी कर रहा है। अब आप देखें क्या ए सी से बिलोंग कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि ये सेट ए जो है ये सी का एलिमेंट नहीं है, तो इट मीन्स ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्लियरली
A is a subset of B and B belongs to set C, but it is clear that A does not belongs to C. अब ऐसा जरूरी नहीं है, यदि आप ये सेट चाहते तो इसका एक एलिमेंट बना सकते थे, तो उस केस में ए सी से बिलोंग करता, लेकिन इसने ये पूछा है कि इज इट ट्रू दैट, तो ये जरूरी नहीं है कि ये इससे बिलोंग करे, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो वो कोई जरूरी नहीं है ये कंडीशन, इसलिए यहाँ पे आपने दिखाया कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट if A is subset of phi, then A equals to phi. So students, by equality of two sets A equals to B, दो सेट इक्वल कब होते हैं? If every element of A is an element of B and every element of B is an element of A, then A equals to B. यदि आपने A और phi को इक्वल प्रूव करना है, तो इट मीन्स आपने इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना है, और एक दूसरे का सबसेट प्रूव करने के लिए ये आपको पहले से गिवन है कि A इज ए सबसेट ऑफ फाई, आप प्रूव करें कि फाई भी A का सबसेट है. नाउ A इज ए सबसेट ऑफ फाई, ये आपको गिवन है. A इज ए सबसेट ऑफ फाई एंड फाई इज सबसेट ऑफ A बिकॉज फाई इज subset of every set. Phi is subset of every set. A phi का सबसेट है, ये आपको गिवन है, एंड phi सभी का सबसेट होता है सभी सेटों का, तो phi A का भी सबसेट होगा. अब A phi का सबसेट, phi A का सबसेट. अब A B इक्वल सेट कब होते हैं? जब A B का सबसेट हो, B A का सबसेट हो, तो ये दोनों एक दूसरे का सबसेट हैं, तो देयरफॉर A इक्वल्स टू phi, और यही आपने प्रूव करके दिखाना. Next question is, for any two sets A and B, prove that power set of A equals to power set of B implies A equals to B. बेटा ये जो सिंबल implies होता है, इसका मतलब if then होता है. if then means यदि ऐसा है, जो चीज आपको गिवन है तो ऐसा होगा, इट मीन्स वो आपने प्रूव करके दिखाना है. अब यहाँ पे ये आपको गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी के इक्वल है, देन आपने ये प्रूव करके दिखाना है कि यदि दो सेटों के पावर सेट इक्वल हैं तो वो सेट भी इक्वल होंगे. इट मीन्स आपको गिवन है पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी, एंड वी हैव टू प्रूव ए इक्वल्स टू बी. ये आपको गिवन है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, ये आपने प्रूव करके दिखाना है. एंड बाय इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स, दो सेट इक्वल कब होते हैं? जब वो एक दूसरे के सबसेट हों. इट मीन्स आपने ए और बी दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करना है, और जो आपको गिवन है आप उसे उसमें यूज कर सकते हैं. नाउ अब ए और बी सबसेट कब होंगे? जब ए से बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा और बी से बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा. इसके लिए आप एज्यूम करें, लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट टी. आपने एज्यूम किया कि एक्स कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है. यदि सेट ए में मान लीजिए कि 5 एलिमेंट हैं, तो x की वैल्यू उन 5 एलिमेंट्स में से कोई भी हो सकती है, और आप उनमें से किसी भी एलिमेंट को x से डिनोट कर सकते हैं. यदि x सेट A से बिलोंग करता है तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू A. यदि x A से बिलोंग करता है तो x को कंटेन करने वाला जो सेट होगा वो A का एक सबसेट होगा. इट मीन्स सेट कंटेनिंग x इज ए सबसेट ऑफ A. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास सेट A है और इसके एलिमेंट 1 2 3 हैं, तो इट मीन्स x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है. अब जैसे आप ये कहते हैं कि 2 बिलोंग्स टू A, तो 2 को जो कंटेन करने वाला सेट होगा वो एक सबसेट होगा सेट A का. यदि 2 A से बिलोंग करता है तो 2 को कंटेन करने वाला सेट A का सबसेट होगा. इसी तरह से यदि x एक एलिमेंट है जो सेट A से बिलोंग करता है, तो इस
एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट ए का एक सबसेट होगा। और यदि ये सेट ए का सबसेट है तो ए के जितने भी सबसेट होते हैं वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करते हैं। इट मीन्स दिस सेट कंटेनिंग एक्स इट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। और आपको दिया गया है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। यदि ये पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है तो ये सेट पावर सेट ऑफ बी से भी बिलोंग करेगा। ये आपको गिवन है कि पावर सेट ऑफ ए इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ बी। और यदि ये सेट पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करता है तो कोई भी सेट पावर सेट से तभी बिलोंग कर सकता है जब उस सेट के एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करें। इट मीन्स दिस एलिमेंट एक्स, ये सेट इस पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग कब करेगा? जब ये सेट बी का एक सबसेट होगा। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ बी। यदि ये सेट बी का सबसेट होगा तभी पावर सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। और ये सेट बी का सबसेट तब होगा जब ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करेगा। तो आप लेके चले थे कि x बी एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, आपने एज्यूम किया था कि x ए से बिलोंग करता है और इसकी हेल्प से आपने प्रूव कर दिया कि x की चाहे कोई भी वैल्यू हो, यदि वो a से बिलोंग करता है तो x b से भी बिलोंग करेगा। इट मीन्स a से बिलोंग करने वाला प्रत्येक एलिमेंट x b से भी बिलोंग करता है। देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ b। और इसी तरह से आप उल्टा लेके चले इसे, x belongs to b, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि x also belongs to a। तो similarly we can prove that b is a subset of a। Now a is a subset of b and b is a subset of b। यदि a b का सबसेट है, b a का सबसेट है, तो we can conclude that a equals to b। और यही आपने प्रूव करके दिखाना। Our next question is, if two finite sets have m and n elements and the total number of subsets of the first set is 56 more than the total number of subsets of the second set, then find the values of m and n। So students, इसके लिए आप एज्यूम करें कि फर्स्ट सेट इज ए। लेट ए बी the first set and B be the second set। आपने एज्यूम किया कि फर्स्ट सेट A है और सेकंड सेट B। नाउ फर्स्ट सेट हैव m एलिमेंट्स एंड सेकंड सेट हैव n एलिमेंट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट A equals to, if first set have m elements, then number of subsets of set A equals to 2 raised to the power n। And if second set B have n elements, then number of subsets of set B equals to 2 raised to the power n। Now according to question, the total number of subsets of the first set is 56 more than the टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकंड सेट। अब क्योंकि फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सबसेट सेकंड सेट के नंबर ऑफ सबसेट से 56 ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स तभी ज्यादा होंगे जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा होंगे। तो एक चीज क्लियर होगी यहाँ से कि m जो होगा वो ग्रेटर देन n होगा। अब यदि हम सेट A के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालें तो ये 2 रेज़ टू द पावर m हो गया। और अगर हम सेट B के नंबर ऑफ सबसेट्स बताएं तो ये 2 रेज़ टू द पावर n हो गया। अब क्योंकि m की वैल्यू n से ज्यादा है तो ये नंबर ऑफ सबसेट, इनकी संख्या नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट B की संख्या से ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी वो आपको गिवन है कि इनका डिफरेंस 56 के इक्वल है। तो यदि हम 2 रेज़ टू द पावर m में से 2 रेज़ टू द पावर n को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस 56 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको पता है कि इन दोनों में से जो पावर कम है उसे आप थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं। क्योंकि m की वैल्यू n से ज्यादा है तो जो पावर कम है वो कॉमन निकालें। 2 रेज़ टू द पावर n आपने थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया। यदि 2 की पावर m में से 2 की पावर n आप कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर m माइनस n बच जाएगी।
और 2 की पावर n आपने बाहर निकाल लिया तो माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आपने इस वैल्यू को भी इसी तरह से लिखना है। तो जैसे कि 56 को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे 8 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 इंटू 7, 7 एक प्राइम नंबर है जिसके फर्दर आप फैक्टर्स नहीं बना सकते, और इसे आप 8 इंटू में 8 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब आपने ये दोनों सेम पैटर्न में लिखने हैं ताकि इनको कंपेयर करके हम m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। क्योंकि ये 2 की पावर के रूप में है, इसे भी आप 2 की पावर के रूप में लिखें, 2 रेज़ टू द पावर 3। अब ये टर्म भी 2 की पावर के रूप में है तो इसे आप 2 रेज़ टू द पावर 3, माइनस 1 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ पे है। अब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं और सेम पैटर्न में है, तो ये दोनों तभी इक्वल हो सकती हैं जब ये वैल्यू आपकी 3 के इक्वल हो और ये वैल्यू आपकी भी ये भी 3 के इक्वल हो। तो यदि आप इनको कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। कंपेयरिंग वी हैव n equal to 3 and m minus n is also equals to 3। n की वैल्यू भी 3 और m minus n की वैल्यू भी 3। तो यहां से आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो m minus 3 equals to 3, it means m equals to 6। it means फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 होंगे जबकि सेकंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 3 होंगे। यदि फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर 6 के इक्वल होंगे और 2 रेज़ टू द पावर 6 की वैल्यू 64 के इक्वल होती है। और सेकंड सेट में यदि 3 एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज़ टू द पावर 3 यानी कि 8 के इक्वल होंगे। अब फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ सबसेट 64, सेकंड सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स 8, यदि इनका डिफरेंस निकाला जाए तो ये 56 के इक्वल होगा और यही आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गई होगी। आपने ये सभी क्वेश्चंस विद एग्जांपल सॉल्व करने हैं। यदि आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बेहिचक व्हाट्सएप कर सकते हैं, वो क्वेश्चन डाउट के रूप में मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।